Chale guys, so we'll start away with this chapter, and I thought that that this chapter is best said by this particular line, and this man, I guess. Ultimately, it's not going to be about man versus machine. It looks like a Terminator movie actually. It is always going to be man with the machines. Now this chapter in this case is only about machines and nothing else. Okay. That is how to maintain your machines in a proper condition so that machines give you the result for which they were purchased. As such, I always say this particular line. If you are going to be having a manufacturing business, शायद आप लोगों ने कभी ना कभी 11th या 12th के अंदर तो वो किया रहेगा. There are 5 factors of production. You might have mugged them up as 5 M's of production. If somebody does remember, you can tell me what are the 5 M's of production? 5 M's. All start with M. You produce because of those 5 M's. We call them as 5 factors of production. किसी को याद है तो मेरे को बोल देना. Somebody will be knowing. You all have cleared your 12th. I am hoping for that. एक मिनट, money आ गया. चलो ठीक है, perfect. आगे मैन आ गया, मतलब योर लेबर. उसके बाद मशीन आ गया. चलो ठीक है. उसके बाद 2 more. Sorry, चलो I have written now material, and lastly your management. Okay, ultimately any manufacturing company will survive because of these 5 M's of production. All these factors of production are equally important. You all cannot be ignoring anything as such. This chapter deals with machines. Obviously, machines are going to be there to produce your goods. You have to be understanding this, that you have to maintain the machines in a proper way. अगर machines को अच्छे तरीके से maintain नहीं करोगे तो machines का breakdown बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Breakdown मतलब machines suddenly will stop to be working. So this chapter is all about one thing, and that particular thing is you maintain your machines in that particular way so that there are no unscheduled stops. So that in this particular case, machines give you the performance for which they were being purchased. I'll give you a small example, what traditionally used to be happening and what has started to happen now. Example के तौर पे, अभी if suppose we talk of say 1980s, 1990s up and so on. Okay, many people used to be purchasing a car. कार वगैरह वो खरीद लेते थे, ठीक है, उसको मेंटेन वगैरह वो नहीं करते थे, तो कार चलाते रहते थे. फंडा इज वेरी सिंपल. जब कार खराब होएगा तो तभी देख लेंगे, और क्या. ओके, so therefore times went on. Okay, people in this case they started to realize कि यार मशीन तभी खराब होता है, कार तभी खराब होता है जब अपने को सबसे ज्यादा कार की जरूरत होती है. ऐसा होता है. Okay, so therefore then in this particular case there was a new concept that started. Okay, and that new concept was in this case let's try to have preventive maintenance. Preventive maintenance का मतलब क्या है? Every 6 months हम लोग कार को गैरेज वगैरह तो वो भेजेंगे, खराब हो या ना हो उसका हम लोग वो मेंटेनेंस करवाएंगे. Obviously due to that, can we say amount of breakdowns का जो chances है will reduce? Yes. Okay, yes. So therefore instead of having a breakdown maintenance का मतलब क्या होता है? breakdown maintenance मतलब मशीन खराब हो गया, आप लोग उसके बाद उसको ठीक करवा रहे हो. ऑब्वियसली अगर ऐसा करोगे तो एक तो तुम्हारा टाइम खोटी होएगा, दूसरा रिपेयरिंग का कॉस्ट भी ज्यादा होएगा. दोस पर्टिकुलर थिंग्स विल स्टार्ट टू बी हैपनिंग. इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू हैव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. लेट्स अप्लाई दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट टू आवर फैक्ट्रीज आल्सो. मशीन्स आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. If machines are your factor of production, you keep them in good state, no? Okay, so that's what this chapter is all about. That is how to be keeping your machines healthy. Okay, this chapter is all about that. Total productive maintenance. Maintain your machines in a proper way. It's a fight actually between 2 things. Which 2 things? One of them is going to be called as preventive maintenance. Other of them in this particular case is going to be called as breakdown maintenance. Okay. Breakdown maintenance मतलब मशीन खराब हो गया उसके बाद रिपेयर करवा रहे हो. तो preventive maintenance का मतलब after every week I have a policy कि जो भी हो जाए यार machines का ना वो greasing होना चाहिए, वो oiling होना चाहिए. We should call an engineer to find out कि भाई machine is in proper state or not यार. Okay, so that's what that particular thing is going to be called as preventive maintenance. आजकल if suppose you have a AC at home,
अभी एसी ठीक करने के लिए ओके तब लोग यूजुअली आजकल वो नहीं आते जब एसी खराब हो जाता है. वी हैव अ एएमसी. योर एएमसी स्टैंड्स फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ना एवरी 6 months दैट गाय विल कम एंड ही विल क्लीन द फिल्टर. ओके, ही विल डू द थिंग्स दैट ही. शायद उसके बाद भी एसी खराब होने का चांस तो है, लेकिन ऑब्वियसली चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है. ओके, now what we all start off with, few of the notes I have tried to be preparing over here which you all are going to be writing. You all give the title of the chapter number 20, total productive maintenance. Title though, total productive maintenance. Now, see, I'm going to be doing this particular kind of a discussion under few heads that you'll keep on writing. Okay, I have written them so before your lecture started. ये लिखो जरा please. Losses due to breakdown of machines. इसको रोमन नंबर 1 बोलेगा तो भी चलेगा. Losses due to breakdown of machines. Now, अभी एक चीज जरा वो सोचो, ये लिखो मत, मेरे को जरा बोलो, तुम्हारा मशीन चल रहा था, ठीक है, सडनली उसका ब्रेकडाउन हो गया. मेरे को जरा बोलो, मतलब सडनली खराब हो गया, बंद पड़ गया. व्हाट आर द लॉसेस दैट विल हैपन टू यू बिकॉज देयर वॉज अ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन. अपने हिसाब से वट एवर यू ऑल विल से, मोस्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू बी मेकिंग सेंस फॉर मी. मेरे को जरा बोलो क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं. Units come produce. I think that should be the first particular thing. That will be nothing but loss of productive time. Okay, so therefore let's start to be having that particular thing over here. तो लिखो जरा please your first point. First, loss of productive time. Loss of productive time. सुनो अभी जरा ध्यान से देखो. फर्स्ट विल बी लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम. अभी जरा सोचो, मशीन्स खराब हो गया, वर्कर्स तो उधर बैठा हुआ है टू बी रनिंग द मशीन्स. अगर मशीन खराब हो जाएगा कैन से वर्कर का आइडल टाइम भी बढ़ी जाएगा. यू विल स्टिल हैव टू बी पेइंग दैट पर्टिकुलर वर्कर. ओके, तो लिखो जरा प्लीज सेकंड, आइडल टाइम ऑफ वर्कर्स. आगे थर्ड जो आपका यहां पर वो पॉइंट है, तो वो जरा देखना. नाउ दिस थिंग यू माइट हैव नोटिस, जरा वो सोचो, जब मशीन खराब होता है ना, खराब होने से पहले जो भी क्वालिटी ऑफ द गुड्स बनता है ना, वो अच्छा नहीं बनता है. ऐसा यूजुअली होगा. एग्जांपल, अगर सपोज लाइक यू नो योर कंप्यूटर खराब होने वाला होता है ना, ओके, उससे पहले जरा देखना वो रुकता बहुत ज्यादा है. उसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम वगैरह वो लगता है. हार्ड डिस्क क्रैश होने से पहले कुछ ना कुछ साइन वगैरह वो आता है, लाइक यू नो कि हार्ड डिस्क क्रैश होने वाला है, शायद कुछ डेटा, कुछ छोटी सी फाइल भी जो है बराबर से कॉपी वो नहीं होती. So obviously the quality of the goods is not proper before the breakdown will happen. To give you a small example, अगर तुम्हारा AC खराब होने वाला है, शायद उससे पहले 1-2 दिन तक इतना कूल एयर भी नहीं आएगा. There is a hint for you कि शायद कंप्रेसर जो है वो खराब हो रहा है. So obviously in that particular case, breakdown से पहले the quality of the goods will not be very good. Okay? और अगर breakdown के बाद फिर भी मशीन को चलाओगे कुछ भी करके, तो obviously जो quality of the goods वो बनेगा वो खराब ही बनेगा. यहां पे जरा लिखना थर्ड, inferior quality of the products. एंड फोर्थ, जरा सोचो, दिस इज योर फेवरेट कॉस्ट, दैट इज योर सेटअप कॉस्ट. बेटा अगर मशीन्स को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो अगर मशीन खराब हुआ सडनली बीच में, अपने को उसको सेटअप तो करना पड़ेगा. तो यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन सेटअप कॉस्ट. आगे सेकंड,
Second, in this particular case, is total productive maintenance. Now, this is a program. Okay. जैसे लाइक योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अपना एम क्या होता है, गुड्स ऐसे बनाओ विच आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, मशीन्स को ऐसे रखो ताकि दे गिव यू द रिजल्ट फॉर विच दे वर परचेज. सडनली मशीन बंद नहीं होना चाहिए. ओके, मशीन जो है वो चलना चाहिए, वो अच्छे तरीके से वो चलना चाहिए. ओके, लिखो जरा प्लीज. सेकेंड, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, दैट्स द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. देखो, मेंटेन द मशीन्स इन सच अ वे दैट there are no unscheduled stops. Maintain the machines in such a way that there are no unscheduled stops. मेंटेन द मशीन, मेरे स्क्रीन पर भी वो लिखा हुआ है. मेंटेन द मशीन्स इन सच अ वे दैट देयर आर नो अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स. सुन, मेरा ना टीपीएम वाला एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने का, इट इज अ प्रोग्राम. ओके, तुमको इतनी जल्दी ये चीजों का रिजल्ट वगैरह वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन टीपीएम का जो बेसिक फंडा है ना, दैट कम्स फ्रॉम वन थिंग एंड दैट इज नथिंग बट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है, जब मैं मेरा प्लानिंग कर रहा हूं ना पूरे साल का जब मैं वो प्लानिंग कर रहा हूं, अभी आई ट्राई टू बी थिंकिंग लाइक मेरे को ना, सपोज आई एम लाइक मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड आई हैव मोनोपोली इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मेरे को लगता है जितना प्रोड्यूस कर सकता है ना उतना प्रोड्यूस करेगा. तो मैंने सोच के रखा 365 डेज. अपार्ट फ्रॉम दैट 8 hours द फैक्ट्री ओपन्स. लेट्स ट्राई टू ऑपरेट द मशीन्स फॉर 365 days into 8 hours. ओके, तो ऐसा करेगा ना, ऑनेस्टली इट्स अ वेरी गुड आइडिया. योर प्रोडक्शन विल बी हायर. अपार्ट फ्रॉम दैट योर सेल्स विल बी हायर, एवरीथिंग. But obviously there is one danger, and that thing is, if you are going to be utilizing your machines for 8 hours इकट्ठा, there is a danger कि मशीन कभी ना कभी खराब हो जाएगा. जब मशीन तेरा खराब हो जाएगा, automatically your production will start to suffer. So if your machines are such that, suppose after 5 hours they become heated, okay, तो you should have a kind of a plan. Sir, after every 5 hours, we will give rest to the machines for 30 minutes. Okay. ऐसा अपने को करना चाहिए ताकि उसके बाद जितना भी टाइम बचा है, machines will work in a proper manner. This makes sense to me a lot. Even you'll rewind yourself, around say 1995 or something. अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर था, I know you all were not born at that time. I am तो obviously तो aware of that. You can ask your parents. अभी जब भी कंप्यूटर वगैरह बहुत चलता था ना, माई मॉम यूज टू टेल मी लाइक इतनी देर कंप्यूटर ऑन नहीं रखते, वो आग लग जाएगा. ओके, बिकॉज एट दैट टाइम द मशीन्स वर सच कि वो ओवरहीट हो ही जाती थी. टुडे ऑल्सो बिलो योर लैपटॉप यू ऑल नो दैट देयर इज अ फैन ओवर देयर, एंड दैट इज वाई यू गेट मेनी थिंग्स. ओके, आपको एक कूलिंग फैन, एक वो डिवाइस मिलता है जो आपका जो हीट है नीचे से वो लैपटॉप से तो वो निकाले. वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ कूलिंग पैड. ओके, यू ऑल माइट हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. नाउ व्हाई आर दीज थिंग्स देयर? दीज थिंग्स आर देयर बिकॉज तुम्हारा लैपटॉप काम करता रहेगा. स्पेशली इफ यू हैव अ लैपटॉप एट होम, यू शुड ऑलवेज सी कि उसका फैन किधर है. कई लैपटॉप्स का जो फैन होता है वो नीचे होता है, कईयों का जो होता है वो साइड पर होता है. अगर साइड पे है तो ठीक है, अगर नीचे होता है ना, यू शुड ऑलवेज बी इंश्योरिंग कि उसका जो फ्लो है ना वो ब्रेक ना हो, बिकॉज एल्स हीट विल रिमेन इनसाइड द लैपटॉप. द पार्ट्स ऑफ द लैपटॉप विल गेट ओवरहीटेड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लैपटॉप है ओके वो खराब होना स्टार्ट हो ही जाता है. सो देयरफॉर TPM came with a very simple funda. Machines should give the performance for which we all had purchased them. That is why you should try to maintain them in a proper way. And maintenance मतलब there should be preventive maintenance. Preventive maintenance is like prevention cost. कोई चीज खराब होने से पहले उसको मेंटेन करो ना तो शायद खराब ही ना हो. ओके, सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब जब अपना प्लानिंग करते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग, तो 8 घंटे के हिसाब से बेटा प्लानिंग ही नहीं करने का. You should be wise enough to understand कि 30 minutes in a day machines can be given rest.
तुमको समझ में आएगा। उसके बाद आप परफॉर्मेंस विल बी फार बेटर एज कंपेयर टू दोज काइंड ऑफ केसेस वेयर बाय वी डिड नॉट मेंटेन द मशीन एंड सडनली मशीन बीच में वो खराब हो गया, 5-6 दिन तक तो वो खराब ही रहा। उससे अच्छा यू मेंटेन द मशीन इन अ प्रॉपर वे। इज दिस अंडरस्टूड? तो दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ प्रोग्राम। ओके, ये वाला प्रोग्राम आज इंप्लीमेंट करोगे ना, देर आर मेनी टेक्निकल थिंग्स दैट कम ऑल्सो। ओके, सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, अभी दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अभी माई फ्रेंड हैज अ जिम, तो उसका जो ट्रेडमिल था ना बहुत ज्यादा खराब होता था, तो बहुत ज्यादा खराब होता था। तो वन डे ही आस्क्ड मी लाइक कि व्हाट शुड बी डन। आई आस्क्ड हिम कि ट्रेडमिल के अंदर सब कुछ थोड़ी खराब होता होगा, कुछ ना कुछ देयर मस्ट बी समथिंग जो ज्यादा खराब होता है। बोलता है जिस चीज के ऊपर अपन लोग वो भागते रहते हैं ना, ओके, दैट पर्टिकुलर थिंग, वो जो मैटिंग होता है, ओके, क्योंकि आप उसके ऊपर वो भागते हो तो वो घिस जाता है। तो बोलता है वो जो चीज है ना वो टूट जाता है। ओके, आई टोल्ड इफ यू नो कि वो वाला चीज है जो टूटता है, तेरे को उसका जो स्टॉक है वो ज्यादा रखना चाहिए। जैसे ही वो खराब हुआ इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन ट्राई टू रिप्लेस इट बाय योरसेल्फ। बोलता है वो मेरे को थोड़ी आता है। मैंने बोला तू एक काम कर, एक बंदे को पकड़ हु इज स्पेशलिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेडमिल, उसको बोल कि तेरे को वो ट्रेनिंग दे दे। ओके, नाउ दिस फंडा इज यूज्ड इन टीपीएम अ लॉट वेयर बाय वी ट्राई टू बी थिंकिंग, एक तो मशीन्स को बराबर से मेंटेन करेंगे ताकि दे गिव द परफॉर्मेंस फॉर विच दे वर परचेज्ड। Second, in this particular case, what we all will do, we all in this particular case will try to train a worker, okay, or train the workers for doing smaller things by yourself only, okay. हर एक चीज के लिए बड़े बंदे एक्सपर्ट वगैरह को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। Train the workers in such a way that most of the things in this case those guys can do by itself। तुमको समझ में आएगा अगर ऐसा होएगा तो। अगर कभी मशीन खराब भी हुआ, most of the things can be repaired, no? तुमको समझा मैं क्या बोलूं? मेरे को जरा बोलो, आजकल अगर तुम्हारा फोन खराब होता है, ओके, तुम लोग उसको अपना रिपेयरिंग शॉप पर, अगर सपोज तुम्हारा फोन जो है वो हैंग हुआ, ठीक है, मेरे को जरा बोलो, तुम लोग अपना फोन जो है दुकान पर वो लेके जाते हो तो ठीक करवाने के लिए, यस और नो? अगर हैंग हुआ तो नहीं। तुम्हारा लैपटॉप कभी अगर वो हैंग होता है, डू यू टेक इट टू अ मैकेनिक, मतलब द पर्सन हु रिपेयर दीज पर्टिकुलर थिंग्स? नो नो। ओके, मेरे को जरा बोलो, तुम्हारा लैपटॉप कभी खराब हुआ तो तुम लोग क्या करते हो? सर यहां कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाएगा अगर रीस्टार्ट वगैरह वो नहीं हो रहा, वरना पावर बटन को दबा के रखेगा जब तक वो ऑफ नहीं हो जाता। करेक्ट? नो, वी ऑल डू दैट पर्टिकुलर थिंग, नो? Okay, तो automatically there is one concept of something that we all know by now that is called as autonomous maintenance. Autonomous maintenance का मतलब क्या होता है? All small things no we all can repair. Example के तौर पे you all will purchase any TV और any electronics device today, उसके साथ एक बुकलेट आता है जो कोई नहीं पढ़ता। Okay, मैं बहुत पढ़ता है। वहां पर ना towards the end there are FAQs कि अगर ये नहीं चल रहा, ओके, व्हाट माइट बी द प्रॉब्लम, अगर ये नहीं चल रहा व्हाट माइट बी द प्रॉब्लम। उसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद इफ नथिंग ऑफ दीज थिंग वर्क देन प्लीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। व्हाट इज दैट? दोज गाइज आर ट्राइंग टू एजुकेट यू कि भाई अगर प्रॉब्लम ये है देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू योरसेल्फ कैन ऑल्सो बी डूइंग द थिंग्स। तुमको समझा मैं क्या बोला ना? ये वाला चीज अगर तुम लोग फैक्ट्रीज के अंदर अप्लाई वो करोगे ना, इट बिकम्स वेरी बिग। ट्रेडिशनली क्या होता था ना, ट्रेडिशनली बिफोर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स केम, ओके, देयर यूज्ड टू बी अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड देयर वाज अ फैक्ट्री। ओके, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं। अभी मशीन्स के ऊपर वर्कर लोग काम कर रहे हैं, मशीन खराब हो गई, वर्कर्स में से एक बंदा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल करेगा, मशीन खराब हो गई, वो लोग अपने हिसाब से आएंगे, कभी ना कभी मशीन रिपेयर करके जाएंगे। उतने टाइम तक तुम्हारा प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता। अ बेटर वेज मेंटेनेंस टीम should try to train the workers for all smaller kind of breakdowns that might happen, no? वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं ना कि भाई अगर ये चीज खराब हुआ ना, अगर सपोज मशीन नहीं चल रहा है तो पहले ये चीज ट्राई कर ले, फिर ये चीज कर ले, फिर ये चीज, अगर ये तीनों के बाद भी नहीं चला, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू ऑल कैन कॉल अस। तुमको समझा जो मैं बोला? और शायद ना यहां पर भी परेटो एनालिसिस का 80-20 रूल अप्लाई होता है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सच दैट यू ऑल कैन रिपेयर देम यू ऑल कैन रिपेयर दोस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स बाय योरसेल्फ आल्सो। ओके, हाँ, कभी अगर सपोज मशीन खराब हो गया, तुम लोगों ने बोर्ड ट्राई किया, ये वो वगैरह, उसके बाद भी नहीं हुआ, देन द मेंटेनेंस टीम इज देयर। ओके,
So total productive maintenance takes care of maintenance in every way, and that's why this word was added कि total productive maintenance. Okay, ऐसा maintain करो कि machine खराब ही ना हो, खराब भी हो गया तो provide the training to the workers ताकि most of the things can be repaired fast and immediately. In this particular case, the production can be started once more. Okay, and that's why जो TPM है ना comes with these objectives. You all write down. तो Roman number 3 objectives. 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऐसे ही लिखना जैसे वो मैंने लिखा है, इल बी बेटर. प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट, जीरो ब्रेकडाउन. मशीन का ब्रेकडाउन ही नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव है. ओके, शायद ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्टिव है ऑफ टीपीएम. सेकेंड, जीरो डाउन टाइम्स. डाउन टाइम का मतलब ऐसा ना हो कि मशीन ओवरहीट हो गया फिर अपने को बंद करना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड नो कि मशीन ओवरहीट कितनी देर के बाद होता है, उससे पहले यू शुड शट डाउन द मशीन. ओके, सो देयरफॉर जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डाउन टाइम्स. थर्ड, जीरो फेलियर्स ड्यू टू पुअर कंडीशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन्स की वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट जो है तो वो जो है वो फॉल्टी बने. दैट इज जीरो फेलियर ड्यू टू पुअर कंडीशन. उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको देता हूं. ओके, ये चीज एप्पल भी किया, होंडा भी किया, बहुत सारा कंपनीज करता है. लाइक यू नो, होंडा तो हर 1 या 2 साल के बाद दे ऑल रिकॉल देयर कार्स, दे ऑल रिकॉल देयर कार्स विच हैव बीन सोल्ड एंड दे टेल टू द कस्टमर कि ना क्लच वॉज फॉल्टी, प्लीज यू गेट देम टू द रिपेयर शॉप एंड वी ऑल विल रिप्लेस दैट पर्टिकुलर थिंग. व्हाट इज दिस? उन लोगों को एंड के अंदर वो पता चला कि जो मशीन्स ये वाला क्लच वगैरह वो बनाती है ना, दोज मशीन्स वर ओनली फॉल्टी. तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑल्सो फॉल्टी. नो, सो देयरफॉर देयर शुड बी जीरो फेलियर्स ड्यू टू पुअर कंडीशन. ओके, इफ दिस इज नॉट ओके, माइट बी अ मोस्ट स्टूपिड काइंड ऑफ एग्जांपल, बट अपना वो जो मलेशिया का एक एयरलाइंस था जो क्रैश हुआ था, यू ऑल रिमेंबर दैट? वो किधर चला गया वो किसी को भी नहीं मालूम. उसके ऊपर बहुत सीरीज वगैरह भी बनी, करेक्ट? नो, अभी वो एयरबस का था या बोइंग का था, मेरे ख्याल से वो एयरबस का था शायद. ओके, those guys found out this particular thing that the software that is there inside the airline system was faulty. Now ये एक बहुत बड़ा चीज हुआ था because during that particular period many airplanes had catered to the same kind of a situation. जो ऑटो पायलट का जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो होता है, whereby the where the planes they fly, like you know, okay, that particular thing was faulty. So if that was the reason, ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, उसकी वजह से ultimately your product failed. Same thing, शायद अभी मैं सॉफ्टवेयर का बात नहीं कर रहा हूं, but there should be zero failures due to poor condition. And lastly, in this particular case, zero loss of efficiency. एक normal चीज जरा वो सोचो. If you ever go to drink sugar cane का juice, okay, just a normal example जो भी मेरे दिमाग में आया. अगर सपोज उसका जो हैंडल है उसको बराबर से ऑयलिंग वगैरह वो नहीं करोगे, कैन वी से बंदे को, जो बंदा जो जूस वगैरह वो निकाल रहा है उसको बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है. अगर सपोज वो एक मैनुअल मशीन है तो अगर उसका ग्रीजिंग वगैरह नहीं होगा, he'll have to put lot of force, no? So there should be zero loss of efficiency because of poor maintenance. You maintain your machines in such a way that there is no loss of efficiency for the workers. One of the things that you all will observe in India कि people do not maintain the machines in a proper way and hence there are lot of losses of efficiency. Workers कई बार अच्छा भी होता है लेकिन अगर उनको machines ही अच्छे नहीं दोगे at that time how will those guys work यार? ये 4 चीजें प्लीज लिख के रखो, अभी तक नहीं लिखा तो. जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डाउन टाइम्स, जीरो फेलियर ड्यू टू पुअर कंडीशन. आगे अगर लिखना चाहो तो पुअर कंडीशन ऑफ मशीन्स, ऑब्वियसली मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड जीरो लॉस ऑफ एफिशिएंसी. हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव्स?
ठीक है, फिर उसके बाद लिखो फोर्थ फीचर्स। फीचर्स एक एक करके मैं समझा रहा हूं, देन यू ऑल राइट प्लीज। जब तक मैं बोलूं ना प्लीज डोंट राइट। फीचर्स याद रखना, टू कॉस्ट are always inversely proportional to each other. What are those two costs? One of them is a breakdown maintenance. Breakdown maintenance मतलब मशीन खराब हुआ, उसके बाद आप उसको रिपेयर वगैरह वो करवा रहे हो. Might be like the example that I think of कि breakdown maintenance वगैरह. अभी ना इन अंधेरी वी हैव अ सेंटर, ओके, जहां पे अपना ये जो फाइनल सी का बैच वगैरह है ये चलता था. नाउ ये जिसका ये फोटोग्राफ वगैरह है, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली तो 1500 स्टूडेंट्स वर कमिंग इन आवर वन सिंगल बैच ऑफ कॉस्टिंग. नाउ अभी इसका जो एसी है ना, इसका जो एसी है एक्चुअली वो एसी नहीं है, एक एसी का रूम है पीछे, ओके. दिस इज 130 टन एसी. इट्स वन सिंगल एसी ऑफ 130 टन, ओके. You all will not believe, but इसके लिए every day 1 tanker of water used to be coming. Okay, एक ट्रक आता था रोज सुबह, क्योंकि जब एसी चलता है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था. एंड दिस ओरिजिनली वाज अ थिएटर. तो ये वाला जो एसी सिस्टम है ना, कुछ 1992 के आसपास का है, तो बहुत पुराना था. लेकिन टू चेंज इट वाज टू एक्सपेंसिव, सो देयरफॉर वी कंटिन्यूड विद दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके. तो हम लोग उसको ठंडा रखने के लिए वी यूज्ड टू बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके. अभी हमसे पहले, ओके, तो हमसे व्हाट वी ऑल वर डूइंग, लाइक वी कीप द एसी इन अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ टेम्परेचर. वी कीप ऑन पोरिंग द वाटर, ओके, थ्रू द पाइप्स वगैरह, ताकि एसी का जो कंप्रेसर वगैरह, तो इट वाज अ ओल्डर सिस्टम, ताकि वो कूल डाउन ही रहे, खराब ना हो. अपन लोगों ने उसको 7 साल में एक बार रिपेयर करवाया. इससे पहले व्हेन देयर वाज अ थिएटर ओवर हियर, ओके, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे. उसकी वजह से एवरी 3 months दे यूज्ड टू बी रिपेयरिंग द एसीज. नाउ दैट इज द डिफरेंस. वो लोग जो खर्चा करते थे, दैट इज कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ द मेंटेनेंस? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. व्हाट वी ऑल वर डूइंग कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. अभी वहां पर तभी ना, तो वो थिएटर था, तो पिंकी थिएटर था. जरा सोचो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर हुआ तो शो चल रहा है, बीच में एसी बंद हो गया और वो सिंगल स्क्रीन था, वहां पे जो पब्लिक थी इतनी थर्ड क्लास आती थी, ऑटोमेटिकली वो लोग तो जो मिला हाथ के ना वो लोग स्क्रीन के ऊपर मारना चालू वो हो ही जाते थे. ऑब्वियसली फॉर देम लॉसेज आर वेरी हाई. सो देयरफॉर अ बेटर वे यू ट्राई टू हैव अ फंड ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. मेंटेन द मशीन्स इन सच अ वे ताकि दे गिव यू द रिजल्ट्स फॉर विच दे वर परचेज्ड, ओके. यहां पे लिख के रखो फर्स्ट, breakdown maintenance versus preventive maintenance. Breakdown maintenance versus preventive maintenance. सेकेंड, ये सेकेंड पॉइंट ना मैंने कवर अप वो कर दिया है, बट आई विल एक्सप्लेन दैट वंस मोर ताकि दिस थिंग यू ऑल कीप इन योर माइंड. पहले एक फैक्ट्री होता था, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता था. आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन वगैरह नहीं आता था. ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था, ये लोग खुद को बहुत एक्सपर्ट वगैरह तो वो समझते थे. वर्कर्स यूज्ड टू बी ऑलवेज थॉट ऑफ एज वेरी डाउनग्रेड काइंड ऑफ पीपल, ओके. ये लोग फैक्ट्री के ना काम करेगा, काम कर रहा है, मशीन खराब हो गया, ये लोग उनको रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आ जाओ, मशीन वगैरह रिपेयर कर दो, ये वो. जब तक ये लोग नहीं आएंगे ऑब्वियसली मशीन जो है तो वो खराब ही रहेगा, ओके. That is funda of traditional maintenance. Funda of TPM is autonomous maintenance. तो autonomous maintenance का मतलब क्या होता है? Train the workers in such a way that most of the small kind of breakdowns can be taken care of by the workers themselves. Okay. Only for those things that cannot be handled by these particular workers, you try to call the experts. इसकी वजह से जो ब्रेकडाउन का टाइम भी होता है वो भी कम हो ही जाता है. सो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस इज समथिंग जो दुनिया के अंदर कैच ऑन बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा. दीज आर दोज फंडास विच आर नाउ अप्लाइड इन डेली लाइफ ऑल्सो, ओके. ऑब्वियसली सपोज तुम्हारा कंप्यूटर जो है वो चालू नहीं हो रहा, फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, अभी मेरा डेस्कटॉप अगर सपोज वो चालू वगैरह वो नहीं होता, फर्स्ट थिंग दैट आई डू, ऑब्वियसली आई ट्राई टू बी थिंकिंग कि कंप्यूटर के बदले में कुछ और लगाकर वो देखता हूं वो चालू हो रहा है कि नहीं. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल डू, नो. कुछ और चालू करके वो देखते हैं. तो मैंने वहां पे सपोज
घर में था तो मैंने हेयर ड्रायर लगाया, ओके, हेयर ड्रायर चालू हो गया, मतलब स्विच के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, देन आई ट्राई टू बी थिंकिंग वायर के अंदर दिक्कत है क्या, ओके, तो ऑब्वियसली वो जो कंप्यूटर के साथ, वो डेस्कटॉप के साथ एक वायर वगैरह तो वो होती है, आई थॉट लाइक कि वो वाली वायर के अंदर दिक्कत होगा, आई ट्राई टू बी चेंजिंग, व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज नथिंग बट ऑटोनॉमस। मैंने बहुत ट्राई किया, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ, यू कॉल द एक्सपर्ट्स, ओके, बट दीज आर द वेज दैट आर बीइंग डन, ताकि इन दिस केस लाइक थिंग्स कैन बी डन वेरी फास्ट, ओके। लिखो सेकंड, ट्रेडिशनल मेंटेनेंस वर्सेस ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। थर्ड, एक चीज जरा याद रखना, TQM हुआ, TQM कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वन थिंग, जो क्वालिटी प्रोडक्ट का बनना चाहिए, दैट शुड बी द बेस्ट क्वालिटी दैट वी कैन बी मेकिंग। उसके लिए भी बेटा यू गॉट टू बी ट्रेनिंग द वर्कर्स। तुम लोग को याद होएगा, वन ऑफ द प्रिवेंशन कॉस्ट इज स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, नो, आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ही किया ना, यू ट्रेन द स्टाफ इन अ प्रॉपर वे, तो वो नहीं होगा, तुमको समझ में आएगा। TPM के अंदर भी बेटा देखो, वर्कर लोगों को ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा। कोई बोलते सर ट्रेनिंग क्यों देने का, एक तो देखो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस के लिए यू विल रिक्वायर द ट्रेनिंग, सेकंड यू विल हैव टू टेल द वर्कर्स हाउ टू बी रनिंग द मशीन्स। कई वर्कर लोग मशीन्स को ऐसा यूज करते हैं कि वो खराब होएगा ही होएगा, ओके। एग्जाम्पल, कोई अगर तेरा फोन लेकर कैसे भी यूज करता है, ओके, तू बोलेगा भाई ये मत कर, उसका जो स्क्रीन है वो खराब हो जाएगा, विल बी सेइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, लेट्स अप्लाई द सेम थिंग टू द फैक्ट्री आल्सो। So therefore, we try in this case to be training the workers how to be running the machines, how to be maintaining the machines, how to be repairing the machines in case of the breakdown, okay. So for all these particular things, training is required, okay. तो याद रखना, TQM के अंदर the training is required how to be making the product, okay. TPM के अंदर the training is required how to be maintaining the machines, how to be running the machines in a proper way, okay, and obviously in this particular case how to repair the machines, okay. तो यहां पे वो लिख के रखो, training of the workers is required to show the results of TPM. Training is mainly given in training is mainly given in 3 areas, that is how to run the machines, how to maintain the machines, and how to repair the machines in case of breakdowns. अभी लिखो TPM वर्सेस TQM। अच्छा सर, TPM का फोकस इज ओनली वन थिंग, मेंटेन द मशीन्स इन सच अ वे दैट दे गिव द रिजल्ट्स दैट आर इंटेंडेड, ओके। TQM का फंडा इज कि लाइक प्रोडक्ट ऐसा बने ताकि देर आर नो क्वालिटी डिफेक्ट्स। तो तुमको समझ में आएगा इन अ वे, नो, TQM इज अ वेरी बिग कंसेप्ट एंड TPM इज माइट बी अ स्मॉल पिलर इन दैट। यू विल अंडरस्टैंड, फॉर हैविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू विल ऑल्सो रिक्वायर दैट द मशीन्स वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे, नो, करेक्ट, नो? दैट इज अ कॉमन सेंसिंग। मशीन्स अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स तो कैसे अच्छा आएगा, ओके।
तेरा जो मशीन है वो बराबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बीच में ये वाला चीज वो हुआ भी था, अभी Xiaomi जो कंपनी है ना, उन लोगों ने बीच में वो नोटिस किया कि ना उनका जो बैक ऑफ द फोन होता है ना, उसके अंदर हमेशा एक स्क्रैच रहता है। ओके, हमेशा ऐसा उन लोगों ने 50,000 फोन्स बनाने के बाद नोटिस किया। देन दे रियलाइज दैट द मशीन वाज फॉल्टी। ओके, मशीन से जब भी प्रोडक्ट बनता है वहां पे कुछ ना कुछ मशीन के अंदर है जिससे वन स्क्रैच कम्स। ओके, दैट इज द इंडिकेशन दैट समथिंग इज डैम रॉन्ग विद यू। ओके, so in this case तो TPM is a small part of TQM, तो TQM is a big thing, okay, because TQM के ना everything comes like you know product का quality, फिर उसके बाद all the appraisal cost, prevention cost, but one of the things that is required for TQM is TPM, and obviously TPM comes wherever there are machines. अगर suppose your production is labor oriented then this chapter does not even come into play यार, ठीक है। तो just आप लोग इतना you all can write down, focus of TQM is on best quality of products. Focus of TPM is on machines. एक लाइन इसके बाद लिखना, for the best quality of products, for the best quality of the products, it is necessary that for the best quality of products, it is necessary that machines are maintained in the best state. Full stop. Therefore, TPM is one of the components of TQM. Therefore, TPM is one of the components of TQM. TPM is one of the components of TQM. चलो लिखो अभी 6th टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, ये अपना लास्ट पार्ट है। ओके, जिससे अपना जो थियरी है विल ऑलमोस्ट गेट कवर्ड। उसके अंदर टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के नाम है, तुम लोग को 3 ऑलरेडी बता दिया है। जस्ट यू ऑल राइट डाउन द नेम्स। फर्स्ट, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। सुन, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मशीन खराब हो गया, उसके बाद आप उसको रिपेयरिंग वगैरह करवाओ, दैट इज अ मेंटेनेंस डन आफ्टर द ब्रेक डाउन। सर दैट इज नॉट गुड सर, मशीन खराब ही नहीं होना चाहिए। फिर आप एक काम जरा करो, ट्राई टू हैव अ फंडा ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मैंने अपने वर्कर लोगों को बोला, 2 या 3 लोग वर्कर्स के अंदर से आई पिक्ड अप एंड आई टोल्ड देम that your job is only one.
एवरी 7 days के बाद मशीन्स का ऑयलिंग करने का, ग्रीजिंग करने का, ये वाला पार्ट चेक करने का, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, दैट इज नथिंग बट प्रिवेंटिव मेन. मेक प्रॉपर शेड्यूल्स की मशीन कभी रिपेयर वगैरह, कभी मेंटेन वगैरह होएगा. ओके, सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन बी ट्राइंग टू बी हैविंग द कार्ड्स ओवर देयर, जैसे जॉब कार्ड्स वगैरह वो होते हैं जहां पे वो लिखा हो एवरी मंडे वेदर यू ऑल हैव मेंटेन द मशीन और नॉट, सो देयरफॉर हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स. उसके बाद भी शायद कभी ना कभी मशीन खराब हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि कभी भी खराब नहीं होएगा, ये सब करने के बाद भी मशीन खराब हो ही सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड. ओके, फिर उसके बाद थर्ड इज ऑटोनॉमस मेंटेनेंस. Now, autonomous maintenance का मतलब I've told you कि train the workers for smaller things. Bigger things in this particular case can be handled by the experts only. ठीक है, तो मोस्टली यहां पे 80-20 रूल विल ऑल्सो अप्लाई कि ज्यादातर मशीन जब भी खराब होता है ना, दैट बी बिकॉज ऑफ ऑल दो स्मॉल रीजंस दैट द वर्कर्स कैन ट्राई टू डू बाय देमसेल्व्स ऑल्सो. हाँ, उसके बाद भी अगर वो 20% रीजंस आ गए दैट दीज गाइज कांट हैंडल, देन इन दैट केस यू कॉल दोस पर्टिकुलर पीपल. ठीक है, उसके बाद फोर्थ यहां पे लिख के रखना करेक्टिव मेंटेनेंस. नाउ करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? अभी ये जो फोर्थ और फिफ्थ आई एम गोइंग टू बी सेइंग ना, दिस इज स्लाइटली वो टेक्निकल. ट्राई टू मेक द मशीन्स इन सच अ वे, ट्राई टू यूज दोज पर्टिकुलर मशीन्स विच आर इजियर to maintain, which are easier to clean. तुमको समझा जो मैं बोला? अभी मैं तुमको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं दैट यू ऑल माइट हैव सीन ऑल्सो. आप लोग मॉल्स वगैरह के अंदर जाओगे ना, मॉल्स वगैरह के अंदर, तो ऊपर एसी का डक्टिंग होता है. यू ऑल नो दैट एसी का डक्टिंग होता है. अभी एसी का जो डक्टिंग होता है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट. इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट. ओके, व्हाई इट इज स्ट्रेट? अगर कभी डक्टिंग के अंदर अपने को साफ करने की जरूरत पड़ी ना, आप एक तरफ से एयर मारो, इट विल गो आउट फ्रॉम द अदर पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, अगर सपोज कुछ फंसा भी हुआ है, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस अगर कुछ फंसा भी हुआ है, if you will blow at a very high, मतलब very high speed, mostly there will be a chance it will come out from the other end. Okay, this is one thing जो अब होता है. पहले के टाइम्स के अंदर अगर सपोज एसी का जो डक्टिंग है वो ऐसे जाके वो ऐसे आ जाता है, मतलब राइट एंगल होता है, तो तुमको समझ में आएगा अगर कुछ बीच में अटक गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट. वो एयर से भी तो वो बाहर नहीं आएगा, वो राइट एंगल पर वो जमा हो जाएगा ना. We are trying to be having the machines which are easier to maintain. Okay, आप लोग suppose like you all have not seen those particular times, लेकिन शायद like you all might have seen it. I'm not very sure also. अभी laptops, even your phones also actually, they all come with IP68 rating या IP67 rating या IP69 rating. Okay, you all know that वैसे they all come with IP rating. IP rating stands for what? Is if someone can tell me? IP rating के साथ आजकल फोन्स आते हैं 67, 68 या 69. तो 69 is the highest category वैसे. Come on यार, I'm giving the example that you all know यार. Waterproof. सुनो, उसके जो 6 होता है ना, that is for dust proof. जो 7 होता है that is for waterproof. ठीक है, अभी most of the phones now they all come with these kind of ratings. Okay, phones are dust proof and phones are water. अगर 67 है ना तो it is water resistant, it is not waterproof. In 68 like the water resistance becomes waterproof up to a certain meters का limit. Okay, and if it is IP69 rating then it is good waterproof. Okay, मतलब वो पानी वगैरह से कुछ होता नहीं है. ठीक है, अभी some people always think like sir फोन को डस्ट प्रूफ क्यों होने की जरूरत है? मैं मिट्टी में वो थोड़ी खेलता हूं. और सर मिट्टी लग जाती है ना, मैं अपने इससे शर्ट से रब वगैरह वो कर लेता है. बेटा वो लोग वो मिट्टी का बात नहीं करता है.
वो लोग वो मिट्टी का बात करता है विच गोज इनसाइड द फोन्स, ओके, विच गोज इनसाइड द फोन्स। अभी जो पहले वाले फोन्स होते थे ना, जो पहले वाले फोन्स होते थे, अभी उसका बैटरी वॉज रिमूवेबल। यू ऑल हैव सीन दोस टाइम्स, नो एटलीस्ट उतना यू ऑल नो, उसका बैटरी वॉज रिमूवेबल। अभी बैटरी जब भी रिमूव करते थे ना, क्योंकि क्या है, अगर फोन हैंग होता था ना, तो 2010 2011 के ना देयर वाज अ सिंपल थिंग, ओके, फोन का बैटरी निकालो, इट इज लाइक रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर, तो वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जब भी आप फोन का बैटरी निकालते हो, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर दे एंटर द मशीनरी, उसकी वजह से ना फोन तुम्हारा स्लो हो जाता है। सेम थिंग हैपेंस विद योर लैपटॉप्स ऑल्सो, ओके, विच यू ऑल डोंट रियलाइज। तुमको लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पुराना हो गया है, जो प्रोसेसर है वो पुराना, येस, दोज आर ऑल्सो द फैक्टर्स, बट your dust accumulates on the processors, they accumulate on the motherboards, that is the one big reason that your machines become slow. तो फिर ये सैमसंग, एप्पल वगैरह ने क्या सोचा कि लेट्स ट्राई टू मेक द फोन्स विच आर डस्ट प्रूफ, ओके, जहां पर इन दिस केस दिस प्रॉब्लम विल ओनली नॉट बी कमिंग। सो देयरफॉर धीरे धीरे ना मशीन्स आर कमिंग विच आर इजियर टू मेंटेन, ओके। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है, ऐसा मशीन्स खरीदो विच आर इजियर टू मेंटेन, okay, or next step is the step ahead of that I was trying to be explaining, and that is called as likho maintenance prevention. मशीन्स ऐसा खरीदो जिसके अंदर ना इन दिस पर्टिकुलर केस मेंटेनेंस की जरूरत ही ना पड़े, ओके। अभी जो लॉयड के न्यू एसीज आते हैं, ओके, लॉयड कंपनी के न्यू एसीज आते हैं, वहां पर ना अभी जो एयर फिल्टर वगैरह होता है, यू नो इन एसी देयर इज अ एयर फिल्टर विच वी ऑल कैन क्लीन योरसेल्फ आल्सो, यू डोंट रिक्वायर अ पर्सन फॉर इट, इज वेरी इजी टू बी क्लीनिंग। अगर विंडो एसी है तो बहुत ही इजी होता है, और अगर स्प्लिट एसी भी होता है इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज सच। तुमको मालूम है कि एयर फिल्टर होता है, उसकी वजह से योर कूलिंग, अगर सपोज उसके अंदर डस्ट बहुत ज्यादा होता है, बट इट इज सो इजी टू बी क्लीनिंग एज सच, ओके। लेकिन जरा सोचो, अभी 5 साल पुरानी बात वो करते हैं, मेरे पास एसी था कोई भी कंपनी का, ओके, मेरे को एक दिन रियलाइज होता था यार वो कूलिंग नहीं हो रहा, तो मैं क्या करेगा, आई विल रिमूव द एयर फिल्टर, बाथरूम में लेके जाएगा, स्प्रे मारेगा उसके ऊपर, जो भी डस्ट है वो निकल जाता है, देन अगेन यू विल डू इट, ओके। बट स्टिल दिस इज डिफिकल्ट, ओके, मतलब नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट यू आर ट्राइंग टू बी क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट और समथिंग, बट इट इज स्टिल थोड़ा सा त्रास होता है। तो लॉयड ने क्या किया, in AC now there is a button over there, the moment you will press that particular button, no, automatically the air filter will get cleaned over there, the dust will come down, okay. What is these are machines that do not require maintenance or are very simple to clean. So therefore these two are the engineering things, okay, whereby purchase the machines that are easier to clean or purchase the machines in this particular case that do not require the maintenance, okay. आजकल तुम लोग phones का कुछ maintenance करते हो, नहीं करते हो ना, it's very easy because there is nothing that's required, okay. अभी one thing that surprised me also, you know, laptops वगैरह के अंदर as I was saying dust वगैरह वो accumulate होता है, okay. accumulate होता है तो it becomes very slow. तो 2017 नो I'd gone to USA, there no I took one laptop from there, वो Lenovo कंपनी का था। अभी उसके अंदर ना Lenovo has given a button over there, okay, that button is kind of a small vacuum cleaner which is put inside. You बटन को प्रेस करके रखो, सारा का सारा जो डस्ट होता है inside the laptop, you will see it going out from the laptop, okay. What is that? These are machines that are easier to clean. These are the machines that do not require the maintenance, okay. So these are the types of maintenance that you all can be having as such, okay. आप लोगों को केस स्टडीज के अंदर भी पूछ सकते हैं ये सब चीजों का मतलब क्या है। इसका मतलब है मशीन खराब हो उसके बाद मेंटेनेंस, ये है मेंटेन द मशीन्स, हैव scheduled stops. Scheduled stops मतलब say that after every 5 hours we will stop the machine, okay, we will give it rest ताकि वो ठंडा हो जाए, after every 2 weeks we will try to oil the machines, grease the machines up and so on वगैरह। Autonomous, you try to train the workers for the smaller defects, take the machines which are easier to clean, take the machines which do not require the maintenance as such। लेकिन तुमको समझ में आएगा, obviously for these two things your cost of the machines will be shooting up, so somewhere or the other तुम लोग को शायद कभी ना कभी एक यहां पर वो डिसीजन वो लेना ही पड़ेगा कि फाइनेंशियली मेरे लिए क्या अच्छा है। The machines which are on the higher end will give you all the features, but then those machines are going to be expensive also, okay. So that's what is your entire program as such, okay.
दिस इज योर टीपीएम प्रोग्राम दैट यू विल हैव टू बी स्टडिंग. ठीक, ये हो गया तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन. ठीक है, अभी इस इंट्रोडक्शन के बाद ध्यान से जरा सुनना मेरी बात. एक बंदा था कॉल्ड एज नाकाजिमा. ओके, जापान का बंदा था नाकाजिमा. ओके, यू विल सी हिज स्पेलिंग इन द बुक ऑल्सो. उस बंदे ने ना एक यहां पे फंडा तैयार किया. बोलता है यू ऑल शुड मेंटेन योर मशीन्स इन अ प्रॉपर वे. तो अभी दिस स्टेटमेंट नो इज अ वेरी लूज स्टेटमेंट, लाइक यू नो मेंटेन द मशीन्स इन अ प्रॉपर वे. बट हाउ डू आई नो दैट एम आई मेंटेनिंग माई मशीन्स इन अ प्रॉपर वे और नॉट? सो ही टोल्ड अस फ्यू थिंग्स. ही टोल्ड देखो, अगर मशीन्स को बराबर मेंटेन करोगे ना तो मशीन की वजह से तुम्हारा क्वालिटी कभी खराब नहीं होएगा ऑफ द प्रोडक्ट. तुमको समझा जो मैंने बोला? यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ठीक है. सेकंड, वो बोलता है अगर तेरा मेंटेनेंस प्रोग्राम बहुत अच्छा होएगा ना, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स हु यूज द मशीन विल ऑल्सो बी गुड. इज दैट अंडरस्टूड? थर्ड, he told if you will maintain the machines in a proper way, no, availability of the machines for the worker will always be higher. तो उसने ना यहां पे एक कंसेप्ट बनाया. बोलता है मेरे को ना एक ऐसा चीज तैयार करने का है दैट टेक्स केयर ऑफ मशीन शुड बी अवेलेबल टू द वर्कर्स वेन एवर दे ऑल वॉन्ट. ये ना हो कि मशीन सडनली खराब हो जाए. फर्स्ट थिंग वो बोलता है कि ना परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स हु यूज दोस पर्टिकुलर मशीन शुड ऑलवेज बी वेरी गुड. ओके, एंड लास्टली ही से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट गेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दोस पर्टिकुलर मशीन्स should be as less defective as possible. मतलब the quality should be as good as possible. Okay. उसने बोला ये तीन चीजें I have to try to be ensuring that these three things are always good. इसने बोला फिर इसका कुछ ना कुछ सर एक परसेंटेज तो बताओ. तो उसने कुछ ऐसा बोला. वो बोलता है अवेलेबिलिटी रेशियो शुड बी 90%. इससे ज्यादा होएगा तो अच्छा है, लेकिन अवेलेबिलिटी रेशियो शुड बी 90%. अवेलेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या? एग्जांपल के तौर पे 8 आवर्स मशीन चलता है, ठीक है, 8 आवर्स मशीन चलता है, उसके अंदर से ना 1 आवर रोज मशीन खराब हो ही जाता है. सो देयरफॉर अवेलेबिलिटी रेशियो विल बी 7/8. तुमको 7/8 वो समझ में आ गया? You all will understand this is one of the checks to find out are you maintaining the machines in a proper way. No, अगर तू मशीन्स को अच्छे तरीके से मेंटेन करता तो कैन वी से 7 hours could have been 7.99 also. No, मशीन खराब ही नहीं होता ना कभी. तुमको समझा जो मैं बोला? तो वो क्या बोलता है कि एक वर्ल्ड क्लास कंपनी जो होती है ना शुड एटलीस्ट इंश्योर अवेलेबिलिटी रेशियो इज 90%. दिस इज अ स्टैंडर्ड मेट्रिक. मेट्रिक बोले तो केपीआई, केपीआई बोले तो वी आर गोइंग टू बी मेजरिंग हाउ मच वी मेंटेन द मशीन्स बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि ना अवेलेबिलिटी रेशियो शुड बी 90%. ओके, ये उसने बोला. फिर उसने बोला परफॉर्मेंस रेशियो शुड एटलीस्ट बी 95%. परफॉर्मेंस रेशियो बोले तो एफिशिएंसी रेशियो. तुम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी किया हुआ है. तुम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड्स के ना एफिशिएंसी रेशियो किया था. तुम लोग को याद है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके एक चैप्टर किया था. हाँ, तो वहां पे एफिशिएंसी रेशियो अगर उसका फॉर्मूला देखोगे मैं तुम लोग को वही चीज लिखवाने वाला है. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स टेकन. एग्जैक्टली वही वाला चीज लिखवाएगा. वो बोलता है एफिशिएंसी रेशियो वर्कर लोग का 95% तो होना चाहिए. ठीक है. तीसरा वो बोलता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू प्रोड्यूस थ्रू द मशीन शुड एटलीस्ट बी 99%. उसका मतलब क्या है? सपोज तूने 100 यूनिट बनाया मशीन से, उसके अंदर से ना तेरा 2 डिफेक्टिव था, तो मतलब गुड यूनिट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर केस वाज 98 आउट ऑफ 100. सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस तेरा ये वाला जो रेशियो है ये कितना परसेंट है? 98%. लेकिन उसने क्या बोला था? ये वाला रेशियो कितना होना चाहिए? 99. Now these are accepted things throughout the world. तो अभी ये मेरे को सर उसको ये सब दिमाग में कैसे आया? बेटा अभी ना उसने एक चीज बोला which is now accepted. Okay, so therefore these are the things he thinks ideally a company should be having such kind of things. अभी अपना कैल्सी लो, 90 लो ऑन कैल्सी, 90 लो इंटू 95 मारो इंटू 99 मारो, 90 इंटू 95% इंटू 90 इंटू 95% इंटू 99%. मेरे को बोलो कि आंसर कितना आता है? 85 के आसपास आता है ना. ओके, तो इन दिस केस उसने क्या बोला है? आज से ना ये तीनों का मल्टीप्लायर वी विल कॉल एज OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. ओके,
दिस वॉज अ टर्म दैट वॉज कॉइंड बाय मिस्टर नाकाजिमा. ही टोल्ड अगर आपका कंपनी टीपीएम प्रोग्राम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेगा ना, देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये वाला जो रेशो है ना, दैट विल बी अराउंड 85%. सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज टोल्ड दैट इफ योर this ratio OEE is 85% or more, no, it is a world class ratio and your TPM program is working perfectly. Is this all okay? ठीक है, मैं तुम लोग को यही वाला चीज लिखवाने वाला हूं और उसके बाद बस तुमको हर एक का मैं यहां पे फॉर्मूला जो है वो बता सकता हूं, बट दैट फॉर्मूला इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो. ठीक है, लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन. ऐसा लिखना, एक टाइटल देना KPI. KPI का फुल फॉर्म यू ऑल नो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ TPM. नेक्स्ट लाइन पे ना OEE बाद में लिखना, पहले उसका फुल फॉर्म लिखना, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. Overall equipment effectiveness. Overall equipment effectiveness is equal to availability, ब्रैकेट में वो शॉर्ट फॉर्म वो लिख ही देना, OEE is equal to availability into performance into quality. Overall equipment effectiveness. Overall equipment effectiveness. लिख लिया? Is equal to availability into performance into quality. अभी उसके बाद जरा लिखो, ऐसा एक टेबल बनाएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट अवेलेबिलिटी रेशियो. सुनो, this ratio will tell you how many hours machines were available for the workers to work out of the total hours that machine can be available. तुमको कुछ नहीं समझा, देखो तुमको कोई एक दिन का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना. सपोज कोई एक फैक्ट्री सिंगल शिफ्ट के अंदर काम करता है 8 आवर्स, ठीक है. अभी अवेलेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या है, हाउ मेनी और हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टाइम मशीन्स आर अवेलेबल फॉर द वर्कर्स. तुमको वो चीज वो जानने का है, ठीक है. 8 आवर्स के अंदर से ना वर्कर लोगों का लंच ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह सब मिला के 1 आवर हो जाता है, ठीक है, 1 आवर हो जाता है, ठीक. कैन वी से 1 आवर मशीन्स तो बंद ही रहेगा, बिकॉज मेरे को जरा बोलो, मशीन्स आर नॉट अवेलेबल कि वर्कर्स आर नॉट अवेलेबल? वर्कर्स. तो ये वाला जो टाइम अपना लूज हो रहा है ना, ये मेंटेनेंस की वजह से नहीं लूज हो रहा है, ये ब्रेकडाउन की वजह से नहीं लूज हो रहा है, ये इसलिए लूज हो रहा है क्योंकि द वर्कर्स आर नॉट अवेलेबल. वो लोग खाने पीने के लिए गया यार, ठीक है. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, हम लोग क्या करता है, हमारी फैक्ट्री के ना एक फंडा है कि ना, वी गिव द वर्कर्स 45 मिनट्स इन दिस पर्टिकुलर केस टू क्लीन द थिंग्स, ठीक है, टू क्लीन द थिंग्स. अभी बेटा
फैक्ट्री के अंदर काम होएगा, फैक्ट्री गंदा वगैरह तो हो ही जाएगा. So during the day, no, they have to be cleaning the factory 2 times. The total time for that is 45 minutes. ठीक है. Obviously during that time also machines will have to be closed क्योंकि workers are cleaning the things. ठीक. और कंपनी का एक फंडा है, रोज का 15 मिनट ना मशीन को ऑयलिंग वगैरह वो दिया जाएगा. All those particular things will happen. ठीक है. तो if somebody will ask you on any day, machines should be available to the workers for how many hours of production? So can we say our answer is going to be 6 hours, no, as such? Correct, no? 6 hours के लिए machine should be available for production. लेकिन एक दिन क्या हो गया, बीच में ना मशीन सडनली खराब हो गया, तो 30 मिनट्स जो है वो उसके अंदर से चला गया. ओके, तो 30 मिनट्स वो लग गया मशीन को रिपेयर वगैरह वो करने के लिए. ठीक है, That was one particular thing. Second, बीच में ना पावर फेलियर हुआ. याद रखना, पावर फेलियर इज ऑल्सो योर प्रॉब्लम. अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर पावर फेलियर बहुत ज्यादा होता है, then in that particular case you should have installed a power backup. If you have not installed, that is bloody your problem. ठीक. तो in that particular case 20 minutes went for that particular thing. बीच में मशीन खराब हुआ, फिर से उसको सेटअप करना पड़ा. ओके, सो देयरफॉर 10 मिनट्स वो उसके अंदर गया. ओके, तो कैन वी से मशीन्स वर अवेलेबल ओनली फॉर 5 hours, नो? 5/6 is nothing but your availability ratio. That is, machines could have been used for 6 hours, but machines were actually used for कितना hours? 5 hours. You all understood the meaning of the term availability ratio? How many hours और हाउ मच परसेंटेज. अगर सपोज मैं परसेंटेज के निकालने के लिए जाऊं, इट बी 5/6 into 100, दैट विल बी नथिंग बट 83.33%. ओके, दिस इज नथिंग बट अवेलेबिलिटी रेशियो. मैं तुम लोग को एग्जैक्टली यही वाली चीज वो लिखवा रहा हूं. ठीक है, तो 5/6, 5 यहां पर क्या होगा, यहां पे लिख सकते हो एक्चुअल आवर्स वर्कड, या फिर तुम लोग इसको ऑपरेटिंग टाइम भी बोल सकते हो, divided by planned production time. We could have used the machines for 6 hours, beta. इसके ऊपर एक एस्ट्रिक डालना and on into 100 you all can write down if you all want. ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर एक एस्ट्रिक डालो और नीचे लिखो this time will be hours available less time when workers are not there or clean up time or time for preventive maintenance. चलो, ये वाला रेशो 90% होना चाहिए. बस यहाँ पे आप लोग 90% लिख सकते हो. ये बहुत लंबा जाएगा, मैंने क्या बोला था 3 या 4 लाइन. चलो ठीक है, अवेलेबिलिटी रेशो. उसके बाद परफॉर्मेंस रेशो, इसको तुम लोग एफिशिएंसी रेशो भी बोल सकते हो. ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लास्ट रेशो है. अभी वर्कर लोगों ने जरा सोचो कितने घंटे काम किया बेटा, 5 घंटे. ठीक है, अभी फॉर अ स्मॉल एग्जांपल उन लोगों ने 200 यूनिट बनाए. 200 यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स लगना चाहिए था. ठीक है, लेकिन 200 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स लग गया? 5 आवर्स. 1 मिनट, 4 आवर्स लगना चाहिए था, 5 आवर्स लग गया. पहले मेरे को जरा बोलो, आर वर्कर्स एफिशिएंट, येस और नो? नो.
तो कैन वी से जो मैंने तुम लोग को रेशियोज के अंदर सिखाया था, शायद याद होगा, एफिशिएंसी रेशियो शुड बी लोअर देन 100%, सो न्यूमरेटर विल बी लोअर देन द डिनोमिनेटर. यू ऑल रिमेंबर दैट? तो कैन वी से योर एफिशिएंसी रेशियो विल बी 4/5, नो, इंटू 100 कर लेंगे. चलो ओके, अभी जरा सोचो 4 क्या है और 5 क्या है. मेरे को जरा बोलो 4 क्या है, 4 क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. ठीक है, तो लिखो जरा प्लीज, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. 5 क्या है बेटा? एक्चुअल आवर्स वर्कड. इंटू 100. यहां पे मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तुमको एक रेफरेंस लिखने का, यू ऑल कैन राइट डाउन, सी एफिशिएंसी रेशियो इन फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस. तुमको वो वाला पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर भी दे देता हूं, तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखा होगा, पेज नंबर 11.21, पेज नंबर 11.21. ये रेशियो 95% होना चाहिए. अच्छा देखो, ये बंदे का नाम अगर किसी को लिखने का बहुत मन है तो नाकाजीमा, तो दीज आर द थिंग्स दैट वर प्रिस्क्राइब बाय हिम ओनली. तो अगर किसी को लिखने का है तो स्टैंडर्ड एज पर नाकाजीमा. थर्ड, क्वालिटी रेशियो. तुम लोगों ने 500 यूनिट मशीन से बनाए, ठीक है, 475 पास द क्वालिटी टेस्ट, बाकी रेस्ट ऑफ देम वर डिफेक्टिव. सो देयरफॉर योर क्वालिटी रेशियो ऑब्वियसली विल बी दिस अपॉन दिस इनटू 100. सो देयरफॉर यूनिट्स दैट पास्ड द टेस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू 100. ये 99% होना चाहिए. और इसके बाद OEE इज इक्वल टू, सुनो अभी क्या कर लेना, दैट विल सेव आवर हाफ अ मिनट. इसको A बोल देता है, इसको P बोल देता है, इसको Q बोल देता है. तो OEE इज इक्वल टू A इंटू P इंटू Q. तो 90% इंटू 95% इंटू 99% इज इक्वल टू 85%. चलो सुनो, योर दिस जॉब इज डन कंप्लीटली. ठीक है, अभी अपने पास 4 क्वेश्चन है फॉर OEE, जिसके से टेक्निकली वैसे 2 आर सपोज टू बी फॉर होमवर्क, बट आई विल फिनिश देम ऑफ. ठीक है, तो खत्म वो कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ फटाफट. वी ऑल विल फिनिश देम, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. अभी ना एक छोटा सा चीज, ICA ने ना अवेलेबिलिटी रेशियो का ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये उन लोगों ने 2020 के मॉड्यूल्स के अंदर तो वो बदला था. ठीक है, सो इन फ्यू ऑफ द ओल्डर पेपर्स, ठीक है, यू ऑल माइट फाइंड अ डिफरेंट थिंग, बट नाउ दिस इज वॉट एवर हैज टू बी डन बाय अस. ठीक है, सो इंश्योर दैट
all your answers are based upon this particular thing only. Okay, so that's why I'm solving all the questions. तो एक दो का आंसर आईसी ने पहले अलग दिया था क्योंकि वो 2020 से पहले के वो क्वेश्चन से, बट नाउ इन दिस केस दोज गाइस इन द मॉड्यूल हैव मेंशन्ड फ्यू ऑफ द थिंग्स. ओके, सो अभी जो 2020 के बाद जो मॉड्यूल्स वगैरह वो आए थे, ओके, तो उसके हिसाब से आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग्स. सो दिस इज व्हाट एवर यू हैव टू बी डूइंग. ठीक है, पहले वो अवेलेबिलिटी रेशियो वो लोग वो गलत करता था 2018 के अंदर. द मोमेंट द मॉड्यूल्स वर रिलीज वी ऑल हैड टोल्ड टू देम ऑल्सो कि अवेलेबिलिटी रेशियो वो गलत किया हुआ है. उन लोगों ने नहीं सुना 2020 के अंदर. दोज गाइज हैड लिसन टू अस. ओके, चलो. गोल्ड कोस्ट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स द स्पेयर पार्ट्स. It works in 2 shifts of 8 hours for 6 days a week. Lunch break is 45 minutes and the other miscellaneous breaks add up to 25 minutes. चलो ठीक है. The following details are collected for the last 4 weeks by the TPM team for one of their important equipments. ठीक है, एक चीज जरा याद रखना, वो लोग 2 शिफ्ट्स के अंदर काम करता है 8 आवर्स का for 6 days a week. लंच ब्रेक इतना है, मिसलेनियस ब्रेक्स जो है वो इतना है. ठीक है, आगे. आवर्स फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फॉर प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 15 मिनट्स पर शिफ्ट. ठीक है, आगे. फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 6 आवर्स इन टोटल. मेरे को जरा बोलो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होने के बाद पता चलता है कि पहले से पता चलता है? बाद में बेटा, मशीन खराब होएगा तो पता चलेगा ना, देन देयर इज अ ब्रेकडाउन. नो, आगे. सेटअप चेंजेस 15 आवर्स इन टोटल. अच्छा, ये वाला डेटा बेटा 4 वीक्स का है यहां. ठीक है, आगे. पावर फेलियर 4 आवर्स. स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पर पीस 3 मिनट्स. नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस पर शिफ्ट 120. पार्ट्स एक्सेप्टेड पर शिफ्ट 115. रिक्वायर्ड कैलकुलेट OEE. तो चलो ठीक है, लेट्स डू द थिंग्स एज सच. ओके, सबसे पहले ना मेरे को सारा का सारा डेटा चाहिए, उसके बाद आगे बात करेगा. तो सुनो, मैं ना यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो अवेलेबिलिटी रेशियो के लिए भी मेरे को आवर्स चाहिए, मेरे को परफॉर्मेंस रेशियो के लिए भी आवर्स चाहिए. ठीक है, क्वालिटी रेशियो ना मैं तुमको इतना बोल देता, आई थिंक यू ऑल आर बिग इनफ टू अंडरस्टैंड. ये दोनों चीजों से ना तुम लोग को क्वालिटी रेशियो जो है बराबर से तो वो मिल ही जाएगा. देखो जरा एक बार ये दोनों नंबर जरा देखो, तुमको समझ में आएगा. ये पर शिफ्ट का डेटा है. अगर मैं यही वाला डेटा 4 वीक्स के अंदर भी कन्वर्ट करूं ना, तो भी मेरा जो परसेंटेज है वो तो वही रहेगा ना. तुमको समझा जो मैंने बोला? तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, फॉर क्वालिटी रेशियो ना मैं तो इसी से काम वो चला ही लेगा. कोई बोलता है सर लेकिन ये तो पर शिफ्ट देता है, तो चलो ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, ये दोनों नंबर्स को अगर कोई बोलता है सर 4 वीक्स के अलग वो कन्वर्ट करो ना, तो एक सेकेंड, दिस इज पर शिफ्ट डेटा. तो मेरे को सबसे पहले दिन का 2 शिफ्ट्स करेंगे. ऐसा हफ्ते में कितनी डेज होएगा? 6 डेज. ऐसा इन दिस केस विल हैपन फॉर कितना वीक्स? 4 वीक्स. उसके बाद अगर मैं ये आंसर निकालूं, ये आंसर दिस अपॉन दिस विल बी नथिंग बट दिस अपॉन दिस. नो, ओके, तो बाकी डेटा तो यार जो है तो वो कॉमन ही है. ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं. योर क्वालिटी रेशियो इज वेरी सिंपल. अवेलेबिलिटी के लिए अपने को काम वगैरह तो वो करना पड़ेगा. ओके, तो लिखो जरा प्लीज राइट नाउ. वर्किंग नोट 1, प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम. ये तुम्हारा डिनोमिनेटर. ये तुम्हारा डिनोमिनेटर. अच्छा, अब मेरे को जरा बोलना, तुम लोग मेरे को 4 हफ्ते के लिए बोलो. मेरे को बोलो 4 हफ्तों के अंदर टोटली फैक्ट्री के पास कितने आवर्स हैं, मेरे को वो चीज कंप्यूट करके दो ऑन कैलसी. कितने आवर्स के लिए फैक्ट्री विल ओपन, मेरे को वो बताओ. दैट इज नॉट द आंसर दैट आई वांट, लेकिन मेरे को वो वाला आंसर तो बताओ आराम से. वो गलत है वो. $384. यहां पे वो लिखना आवर्स दैट फैक्ट्री विल ओपन. 8 आवर्स इन 1 शिफ्ट. दिन का कितना शिफ्ट है? 2. ये हो गई एक दिन की कहानी. इनटू 6 डेज
ये होगी एक हफ्ते की कहानी इंटू 4 वीक्स, 384 आवर्स। अच्छा, अभी ना तुम लोग बस क्या करने वाले हो, इतना टाइम तो फैक्ट्री विल ओपन। मेरे को जरा बोलो इसके अंदर से हाउ मेनी आवर्स वी वांटेड मशीन्स टू रन। आराम से मेरे को बस ये चीज बोल देना कितना चीजें लेस करूं, मेरे को उसके नंबर्स भी मत बताओ, लेकिन मेरे को बोलो कितनी आइटम्स लेस करूं ताकि मेरे को वो वाला आंसर मिल जाए। मशीन्स वर सपोज टू बी रनिंग फॉर कितना आवर्स? कितनी आइटम्स लेस करूं ताकि मेरे को वो वाला आंसर मिल जाए? कितनी? 4। ठीक है, कोई और? मेरे को किसी ने 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 6 भी बोल ही दिया एक्चुअली। उसके बाद एक नंबर बच गया 1, एक नंबर बच गया 5, तो किसी ना किसी का तो करेक्ट फिर होएगा। ढक्कन। अच्छा, मेरे को ऑर्डर के अंदर बोलो, मेरे को बोलो फर्स्ट थिंग जो लेस करना ही चाहिए वो क्या है? लंच ब्रेक। ओके, तो यहां पे जरा लिख के रखो लंच ब्रेक। अच्छा, लंच ब्रेक जो है ना बेटा, सम के अंदर देखो वो चीज वो लिखा हुआ है, लंच ब्रेक इज 45 मिनट्स। टेक्निकली एक्चुअली अगर सपोज मैं वो सोचू ना, सर आई वांट टू इंटरप्रेट एवरी वर्ड परफेक्टली सर, ओके, तो एक्चुअली लंच दिन में एक ही बार आता है। दे शुड हैव रिटन लंच ब्रेक एंड डिनर ब्रेक, क्योंकि देयर आर 2 शिफ्ट्स नो एज सच, करेक्ट नो? ओके, बट ऑब्वियसली आई अज्यूम कि एक शिफ्ट को भी लंच ब्रेक मिलेगा, दूसरे शिफ्ट को भी लंच ब्रेक मिलेगा। टेक्निकली इट विल नॉट बी कॉल्ड एज लंच, लेकिन अभी वो जो भी, आई थिंक वो ऐसे भी इतना नहीं सोचा होगा कभी। ठीक है, तो लंच ब्रेक 45 मिनट्स। कैन यू से लंच ब्रेक विल बी गिवन टू बोथ द शिफ्ट्स नो? Okay, so therefore into 2 shifts, into 6 days, into 4 weeks. बेटा ये वाला जो डेटा है ना तेरा, ये मिनट्स के अंदर आएगा, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो। ये बताओ मेरे को कि ये कितना आता है? मेरे पास आज कैलसी नहीं है, मेरे को जल्दी से बताओ ना प्लीज यार। 36 आवर्स। फिर दूसरा, कैन यू से ये जो मिससेलेनियस ब्रेक वगैरह है, ओके, ये भी अपने को डिडक्ट तो करना पड़ेगा ना, मिससेलेनियस ब्रेक्स। Exactly in the same way we are going to be computing it. 25 into 2 into 6 into 4 divided by 60. मेरे को आंसर बता देना बेटा ये कितना आता है? 20 आवर्स। अच्छा सुनो बेटा, ये वाला टाइम तो मशीन्स विल ओनली नॉट बी वो वर्किंग बिकॉज द वर्कर्स आर नॉट देयर। ठीक है, मैं ना क्या निकालने का ट्राई कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर निकालने का ट्राई कर रहा हूं। मैंने उसके लिए तुम लोग को नोट भी दिया था कि ऑल टेल मी प्रॉपरली। ओके, अभी मेरे को जरा बोलो बाकी चीजें। देखो, योर एम इज टू फाइंड आउट कि अपनी पुअर मेंटेनेंस की वजह से कितना टाइम खोटी हो गया। ठीक है, उससे पहले ये तो पता करो कि अपने पास कितना टाइम था फॉर प्रोडक्शन, तो ये दोनों टाइम तो लेस वो करेगा ही। इसके अलावा मेरे को जरा बोलो क्या क्या और लेस करो ओनली फॉर द डिनोमिनेटर पार्ट। मेरे को जरा बोलो प्लान प्रिवेंटिव वो मेंटेनेंस। कैन यू से वो तो मेरा ही प्लानिंग था कि मशीन्स को मेंटेन करेगा ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर, सो दैट टाइम विल नेवर बी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। नो, इज दैट ओके फॉर एवरीबडी? तो वो वाला टाइम तो अपने पास, इनफैक्ट हम लोगों ने टीपीएम इंप्लीमेंट करने के लिए तो ये वाला चीज वो किया होगा ना। ये अपनी इनएफिशिएंसी नहीं दिखाता, तुमको समझ में आएगा। अपना जो इनएफिशिएंसी है ना, वो ये 3 चीजों की वजह से दिखाई देना चाहिए। तूने मशीन्स को बराबर मेंटेन नहीं किया तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होएगा। एक बार ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, एक मिनट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब समझ में आता है? क्या होता है? मशीन खराब हुआ, उसके बाद रिपेयरिंग के लिए अपना कितना टाइम गया, तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर मशीन्स को सेटअप करने के लिए भी अपना टाइम जाएगा। फिर उसके बाद जो पावर फेलियर है, टेक्निकली वो अपनी गलती है। को बोलते हैं नहीं सर वो तो रिलायंस ने इलेक्ट्रिसिटी काटी। अगर तेरे को मालूम है कि ऐसा वो होने वाला है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू शुड ट्राई टू हैव द पावर ब्रेक।
यू शुड ट्राई टू बी हैविंग द पावर बैकअप. तुमको इतना समझ में आएगा, एवरी ग्रेट फैक्ट्री एटलीस्ट इन इंडिया विल हैव अ पावर बैकअप. नो बेटा, मशीन्स चलती रहती हैं, सडनली अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी वो चला जाएगा, देयर इज अ ह्यूज डेंजर की तरह मशीन भी खराब हो ही जाएगा. ओके, सो इसके लिए तो यहां पर एक चीज और लेस होएगा, सिर्फ एक ही चीज और लेस होएगा. बोलो, मैंने वो बोल ही दिया है. क्या लेस होएगा? और प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. लिखो, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एंड दैट इज 15 मिनट्स पर शिफ्ट. तो वैसे कंप्यूट करता हूं, 15 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60, 12 आवर्स. तो मैंने सोचा होएगा मशीन से इतने घंटे के लिए काम करेगा. बेटा मेरे को ये आंसर बताओ ना जरा. 316. आगे वर्किंग नोट 2, आवर्स वर्कड. आवर्स वर्क के लिए ना बेटा मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूं. प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम 316 आवर्स. अभी मैं तुम लोग को टोटली 3 सेकंड देगा टू रिप्लाई. मेरे को जरा बोलो, इसके अंदर से हम लोगों ने कितने आवर्स सच्ची के अंदर काम किया, उसके लिए आई हैव टू रिड्यूस हाउ मेनी थिंग्स. फटाक से बोल दो अभी. 3 थिंग्स. तो कैन वी से ये तीनों तो अपनी गलतियां है ना बेटा. ओके, तो यहां पे ये तीनों चीजें तो वो लिखो जरा प्लीज. तो यू ऑल राइट डाउन, और वो डायरेक्टली मेरे ख्याल से वो टोटल के तौर पर ही दिया हुआ है. 6 15 4 6 15 4. मेरे को बताना जरा कितना आता है. 291 आवर्स आता है. आगे देखो, मेरे को अवेलेबिलिटी रेशो के लिए जो भी चाहिए था ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मेरे को दोनों मिल गया. ठीक है, आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दिस. ठीक है, अभी देखो परफॉर्मेंस रेशो के लिए मेरे को डिनोमिनेटर के अंदर तो एक्चुअल आवर्स वर्क भी चाहिए, वो 291 ही है जो अभी अभी निकाला. बट आई वांट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. ओके, तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 3, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. तुम्हारे पास टोटली 1 मिनट है. कैलसी उठाओ, मेरे को स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट बताओ टोटली.